یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ تو آج ہم 24 اکتوبر کی تاریخ کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا سے کچھ معلومات ہیں، واقعات، شخصیات، خاص دن، سب کچھ۔ بالکل، اور یہ صرف فہرستیں نہیں ہیں۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ان معلومات کو جوڑ کر دیکھیں کہ یہ ایک دن 24 اکتوبر تاریخ میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ صحیح، یعنی اس ایک تاریخ کے تانے بانے میں کیا کچھ بنا ہوا ہے، سیاست، سائنس، ثقافت، انسانی کہانیاں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عالمی سیاست۔ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی بات جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ ہے 1945 اقوام متحدہ کا قیام۔ جی ہاں، اور اسی لیے 24 اکتوبر کو اقوام متحدہ کا دن منایا جاتا ہے۔ کیونکہ چارٹر اسی دن نافذ ہوا تھا۔ بالکل۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نئی شروعات تھی، عالمی امن کی امید۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ٹھیک 4 سال بعد 1949 میں جی، نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تو یہ تاریخ اقوام متحدہ کے لیے بہت خاص ہے۔ یقینے۔ اسی طرح قومی آزادی کے حوالے سے 1964 میں زیمبیا، ہاں، جسے پہلے شمالی روڈیشیا کہتے تھے، جی، اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ یہ بھی ایک اہم سنگ میل ہے افریقہ کی تاریخ میں۔ اور اگر ہم اور پیچھے جائیں، 1648، ویسٹ فالیا کا امن معاہدہ، جی، جس نے یورپ کی بڑی جنگیں ختم کی۔ ہاں، 30 سالہ جنگ اور 80 سالہ جنگ، اور اسی معاہدے میں سوئٹزرلینڈ کی آزادی کو بھی تسلیم کیا گیا۔ مطلب جدید ریاستوں کا نظام یہاں سے بننا شروع ہوا۔ واہ، یعنی یہ تاریخ بین الاقوامی تعلقات کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل، اور صرف یورپ ہی نہیں، دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ دن اہم ہے۔ اچھا؟ جی، اردو ذرائع بتاتے ہیں کہ 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی قانون ساز اسمبلی تحلیل کر دی۔ یہ تو بڑا متنازع واقعہ تھا۔ جی ہاں، اور پھر 1990 میں اسی تاریخ کو اسلامی جمہوری اتحاد نے انتخابات جیتے۔ صحیح، تو مقامی سیاست پر بھی اثرات ہیں۔ بالکل، اور عالمی سطح پر اور دیکھیں تو 1980 میں پولینڈ میں سولیڈیرٹی، ہاں، وہ ٹریڈ یونین جو بہت مشہور ہوئی تھی۔ جی، اسے قانونی حیثیت ملی۔ یہ سرد جنگ کے دوران ایک بڑی پیش رفت تھی۔ اور ایک اور واقعہ ہے انگریزی ذرائع میں، 1990 میں اٹلی میں گلیڈیو نیٹ ورک کا انکشاف۔ ہاں، یہ نیٹو کی ایک خفیہ سٹے بیہائنڈ فورس تھی سرد جنگ کے زمانے کی۔ اچھا، اور 1954 میں امریکہ نے جنوبی ویتنام کی حمایت کا عہد کیا تھا۔ جی، یہ بھی سرد جنگ کے تناظر میں ایک اہم قدم تھا۔ اور 1997 میں اردو ذرائع کے مطابق واگا سے چکوٹھی تک انسانی زنجیر۔ جی، کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو آپ دیکھیں سیاست کے کتنے رنگ ہیں اس تاریخ میں۔ بالکل۔ اچھا، تو اب ذرا رخ بدلتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت۔ جی، یہاں تو کچھ بہت ہی حیران کن چیزیں ہیں۔ 1946 خلا سے زمین کی پہلی تصویر او واہ، یہ تو واقعی کمال ہے۔ V2 راکٹ سے لی گئی تھی۔ جی ہاں، سوچئے پہلی بار انسان نے اپنی دنیا کو یوں باہر سے دیکھا۔ یہ ایک انقلابی لمحہ تھا، ہمارا اپنا نقطہ نظر بدل گیا کائنات میں۔ اور دیکھیں، جنگی ٹیکنالوجی کا پرامن استعمال، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اچھا، مواصلات میں بھی بڑا قدم اٹھایا گیا اسی دن۔ کون سا؟ 1861 امریکہ میں پہلی بین الامرازمی ٹیلی گراف لائن مکمل ہوئی۔ ہاں، اس نے تو امریکہ کو جوڑ دیا نا، مطلب فوری رابطہ، ایسٹ سے ویسٹ تک، تجارت، خبریں، سب بدل گیا۔ فاصلے سمٹ گئے۔ بالکل۔ اور کھیلوں کی دنیا میں 1857 شیفیلڈ FC، جی، دنیا کا پہلا باضابطہ فٹ بال کلب انگلینڈ میں۔ آج جو فٹ بال اتنا بڑا کھیل ہے، اس کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ کمال ہے۔ اچھا، اور کچھ اولین واقعات؟ جی، 1951 میں اقوام متحدہ نے اپنی پہلی ڈاک ٹکٹیں جاری کیں۔ اچھا، یہ بھی اسی دن؟ جی، اور 1938 میں امریکہ میں بچوں سے فیکٹریوں میں کام لینے پر پابندی کا قانون نافذ ہوا۔ یہ سماجی طور پر بہت اہم قدم تھا۔ بالکل۔ 1931 میں جارج واشنگٹن برج عوام کے لیے کھولا گیا۔ نیو یارک کا مشہور پل۔ اور ایک عہد کا خاتمہ بھی ہے، 2003 کانکورڈ کی آخری تجارتی پرواز۔ ہاں، سپرسونک سفر کا اختتام ٹیکنالوجی کی ایک شان تھی، لیکن خیر معاشی طور پر قابل عمل نہ رہی۔ اور کچھ مہم جوئی، 1901 میں اینی ایڈسن ٹیلر، نیاگرا آبشار،
बैरल में अबूर किया था उन्होंने। अरे वाह! और 1926 में हैरी हुडिनी का आखिरी करतब जी, मशहूर जादूगर। खलाई तहकीक में भी पेशरफ जारी रही। 1998 में डीप स्पेस 1 मिशन हाँ, ये नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट करने के लिए था। और 2007 में चीन का पहला चांद मिशन चांग-ई 1। जी, ये चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए बड़ा कदम था। और बिल्कुल हाल में 2018 में दुनिया का तवील तरीन समुद्री पुल हांगकांग जोहाई मकाओ पुल जी आवाम के लिए खोला गया। तो देखें, टेक्नोलॉजी, कल्चर, मुहिमजोई सब कुछ है इस दिन। जी, लेकिन जैसा आपने कहा था, तारीख में सिर्फ कामयाबियां नहीं होती। हाँ, मुश्किल वक्त और आफात भी उसका हिस्सा हैं। तो 24 अक्टूबर को कुछ मनफी वाकयात भी हुए। सबसे बड़ा शायद 1929 का ब्लैक थर्सडे। ओहो, स्टॉक मार्केट क्रैश, जिससे अजीम कसादबाजी यानी ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुई। फिर जंगों के हवाले से भी अहम मोड़ है। कई सारी जंगों का जिक्र है, जैसे 1360 में 100 साला जंग के पहले मरहले का इख्तिताम, और 1648 में तो वेस्टफैलिया मुआहदे से 30 साला और इसी साला जंगें खत्म हुई। जी। फिर नेपोलियन के दौर में 1812 की जंगे मौलो यारोस्लावेट्स, 1813 में रूस फारस जंग का खात्मा, गुलिस्तान मुआहदा। 1860 में दूसरी अफ्यूनी जंग का खात्मा, पैकिंग कन्वेंशन, 1894 में पहली चीन जापान जंग की जंग, ज्यूलियांचिंग। 1912 में पहली बल्कान जंग की 2 अहम जंगें, कुर्क्लिसे और कमानोवो। पहली जंगे अजीम में 1917 की जंगे कैपुरीटो और 1918 की जंगे विटोरियो विनीटो। और दूसरी जंग अजीम में 1944 जंगे लेटी गल्फ, जहां जापानी बहरिया को बड़ी शिकस्त हुई। जी, ये बहरे अलकाहा में एक अहम मोड़ था। और 1950 में जंगे चुमडो का इख्तिताम, जिससे तिब्बत पर चीन का कंट्रोल कायम हुआ। तो ये तारीख कई बड़ी जंगों के इख्तिताम या अहम मोड़ों की निशानदेही करती है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की नाकामी भी है। 1960 का नीडेलियन हादसा। हाँ, सोवियत यूनियन में एक मिसाइल लॉन्च पैड पर ही फट गया था, बहुत जानी नुकसान हुआ। ऑफ खिलाई दौड़ की कीमत। जी। और हवाई हादसा भी है, 1947 में यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 608। और अफसोसनाक तौर पर तशद्दुद के वाकयात भी। 1871 में लॉस एंजलिस में चीनी तारिक वतन का कत्लेआम। ये नस्ली तशद्दुद की एक मिसाल है। और हाल ही में 2016 कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला। जी, ये भी एक अलमनाक वाकया था। और कुदरती आफात में 2005 में समुद्री तूफान विल्मा का फ्लोरिडा से टकराना। हाँ। तो ये सब मिलकर दिखाता है कि ये दिन किसी भी दूसरे दिन की तरह इंसानी तारीख के हर पहलू का गवाह रहा है, अच्छे भी और बुरे भी। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आते हैं उन शख्सियात की तरफ जिनका इस तारीख से ताल्लुक है, पैदाइश या वफात। जी। उर्दू ज़राए के मुताबिक 1775 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पैदा हुए। ओह, ये तो बहुत अहम नाम है, तारीख और अदब दोनों हवालों से। जी, शायर भी थे। और 1924 में आनंद नारायण मिला की पैदाइश हुई, जो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के सदर भी रहे। अच्छा। वफात पाने वालों में उर्दू अदब के 2 बड़े नाम हैं इस तारीख को। कौन कौन? 1968 में उस्ताद कमर जलालवी, मरसिया गोई में बहुत बड़ा नाम। और 1991 में इस्मत चुगताई। जी, उर्दू अफसाने की बेबाक और अहम तरीन आवाज़ों में से एक। उनकी वफात यकीनन उर्दू अदब के लिए एक बड़ा नुकसान था। अंग्रेजी ज़राए में देखें तो 1632 में एंटनी फॉन लिवनहॉक पैदा हुए। माइक्रोबायोलॉजी के बानी, इनका ताल्लुक आज की साइंसी थीम से जुड़ता है। बिल्कुल। और 1601 में माहिर फल्कियात टाइको बराहे का इंतकाल हुआ। हाँ, उनके मुशाहिदात बहुत अहम थे। केपलर ने उन्हीं के बुनियाद पर काम किया। 15वीं सदी में 1537 मलका इंग्लिस्तान जेन सेमोर की वफात। हेनरी हश्तम की बीवी। 20वीं सदी में देखें तो 1958 में फलसफी जी.ई. मोर। जी। और 1972 में बेसबॉल के मशहूर खिलाड़ी जैकी रॉबिन्सन। उन्होंने तो नस्ली रुकावटें तोड़ी थी खेल में। बिल्कुल। और 2005 में रोजा पार्क्स का इंतकाल हुआ। शहरी हकूक की तहरीक की अजीम रहनुमा। ये बहुत अहम है। देखिए, जिस दिन अक़वाम मुत्तहिदा कायम हुआ, उसी दिन शहरी हकूक की इतनी बड़ी अलमबरदार का इंतकाल हुआ। ये वाकई एक मानाखीज इत्तेफाक है। जी। और मूसीकी में 2017 में फैट्स डोमिनो का इंतकाल। रॉक एंड रोल के बुनियाद गुजारों में से। आज के दौर की शख्सियात में 1986 में रैपर ड्रेक पैदा हुए। अच्छा। और अदाकार केविन क्लाइन 1947 में।
एफ मरे एब्राहम 1939 में, जी। और रोलिंग स्टोन्स के बासिस्ट बिल वाइमन 1936 में। ऑस्ट्रेलिया भी वजीर आजम मैल्कम टर्नबुल 1954 में, तो सियासत में भी नाम है। और वफात में बिल्कुल हाल में 2022 में अदाकार लेस्ली जॉर्डन, हाँ, बहुत मज़ाही अदाकार थे। और 2021 में जेम्स माइकल टायलर। अरे फ्रेंड्स वाले गिनतर जी। वही। तो मतलब बादशाहों और मलकाओं से लेकर साइंसदानों, अदीबों, समाजी कारकुनों, मौसीकारों और अदाकारों तक कितने मुतनव्वे लोग इस तारीख से जुड़े हैं। बिल्कुल, जिंदगी का हर शोबा शामिल है। और आखिर में वो खास दिन जो 24 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। जी अक़वाम मुत्तहिदा का दिन तो हमने जिक्र कर लिया। हाँ, वो सबसे अहम है। इसके अलावा ये तरक्याती कामों से आगाही का आलमी दिन भी है। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, जी, और पोलियो का आलमी दिन भी। वर्ल्ड पोलियो डे, ये भी बहुत अहम है। अंग्रेजी ज़राए में 2 और दिनों का जिक्र है, बैनुल अक़वामी यौम सफारतकार, अच्छा, इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स, और अमेरिका का यौम खुराक यानी फूड डे। तो ये सारे दिन मिलकर क्या पैगाम देते हैं? आलमी ताउन, तरक्की, सेहत, सिफारतकारी, खुराक। बुनियादी तौर पर आलमी मसाइल और उनके हल की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। बिल्कुल, आगाही, याद दहानी और कहीं कहीं जश्न। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें, 24 अक्टूबर वाकई तारीख से भरा हुआ दिन है। जी हाँ, आलमी इदारों का क़याम, कौमी आज़ादियाँ, सियासी उतार चढ़ाव, साइंसी कामयाबियाँ, खला से पहली तस्वीर, मुवासलात में इनकलाब, सकाफती संग मील, खेलों की इब्तिदा, टेक्नोलॉजी का उरूज व ज़वाल, और साथ ही माशी बहरान, जंगें, आफात, इंसानी अलमिये। और फिर इतनी सारी अहम शख्सियात की जिंदगियां इस दिन से जुड़ी हैं। सही कहा, एक ही दिन में इंसानी तजर्बे की कितनी जहतें नजर आती हैं, बुलंदी भी, पस्ती भी। तो आज के इस जायजे के बाद मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। जी कहिए। हमने देखा कि सिर्फ एक दिन 24 अक्टूबर की तारीख में कितने बड़े, कितने मुख्तलिफ नौ वाक़यात दर्ज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा बन रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, खिला से तस्वीर आ रही है, जंगें हो रही हैं, लोग आज़ादी हासिल कर रहे हैं। जी, ये सब एक ही तारीख के साथ मुंसलिक है। तो सवाल ये है कि आज से 100 साल, 200 साल बाद जब मौर्रिख हमारे दौर के किसी दिन का जायजा लेंगे, किसी भी आम से दिन का, तो वो किन चीज़ों को अहम समझेंगे? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। क्या वो वही बातें होंगी जिन्हें हम आज खबरों में देखते हैं, जिन्हें हम अहम समझते हैं, या वक्त गुजरने के साथ तारीख का पैमाना बदल जाता है? कौन जानता है कि हमारे आज के दिन की कौन सी बज़ाहिर मामूली बात कल की तारीख का अहम मोड़ बन जाए? ये वाकई सोचने की बात है। तारीख का मुताला हमें यही तो सिखाता है कि नुक्ता नज़र वक्त के साथ बदलता है। ये एक अच्छा सवाल है गौर व फिक्र के लिए।